اب توبہ کرے اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے. اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا. تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر ایک، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا. اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے، جیسا سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا. یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہوں، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے. مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا. ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے. نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان، یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے.
اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ انسان کی علامت ہے۔ گناہ ہو گیا نا، آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کریم کے در پر بیٹھے ہیں، شعبان کا مہینہ جاری ہے، برکتوں والا مہینہ جاری ہے، بس اب توبہ کرنی ہے، اب رب کو راضی کرنا ہے، اب گناہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے۔ اور سنو جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے۔ دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے، ہم کسی کا جرم کر لیں، کسی کی خطا کر لیں، کسی کو ناراض کر دیں اور اب اس سے معافی مانگے، وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا، آئندہ مت کرنا، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے، ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں، مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے، اسی کے گناہ کرے، اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، وہ کریم کیسا ہے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سنو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اتنا شرمندہ ہوا، اتنا بے قرار ہوا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، یہ میں نے کیا کر دیا، میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے، بے قرار ہے۔ سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری، اس کی شرمساری، اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ گناہ کیا تھا، خطا کی تھی، مگر توبہ کی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرا رب چاہتا ہے، یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے، ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے، کیونکہ انصاف کے ہم متحمل نہیں، ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے، بس معافی مانگتا رہے، خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ، ارے شرم تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی، شرم تو کرو میرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل گیا، اللہ سے معافی تو مانگو۔ مگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے، ماتھے پہ بل نہیں ہے، دوپہر کو ظہر قضا ہو گئی، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، کاروبار کرنے گیا حرام کمایا، کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جری ہونا، بے خوف ہو جانا۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خطا ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہو گئی معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، مولا معاف کر دے۔ خدا کی قسم کی جو معافی مانگنے والا ہے نا، یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، ابن آدم بھی کیسا ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ ہائے ہائے، کون ہے ایسا کریم؟ ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دو بار نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تین چار بار بات نہ مانے ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں۔ وہ کریم کیسا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، کتنے جرم ہیں۔ ارے اتنے بڑے مجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے؟ آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانے، مگر وہ کریم مولا ہے، اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے، بار بار بلاتا ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں۔
मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं, तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है। एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये तौबा ये नहीं है। यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा। और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, वो आपको वाकया याद होना चाहिए। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था। आपने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें? शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल, आपकी हैबत, और उसको पता था कि अब ये शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया। हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है? हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा? सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी, जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया? उसने दिल दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, आज जलील होने से बचा ले, या अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी? डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है। हजरत उमर के हाथ में वो बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है। रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक, वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना। तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? फरमाया मूसा तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। आप खड़े हो गए, आपने कहा इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, वो निकल जाए हमारे मजमे से कि तू वो शख्स है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो पहचान तो गया कि बात तो मेरी हो रही है। उसने राइट देखा, बाएं देखा कि शायद कोई और उठ जाए, कोई नहीं उठा। वो समझ गया कि मैं ही वो खताकार हूं। लेकिन वो सोचने लगा कि आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस बंदे ने पता ही क्या काम किया, उसने दिल में अब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज माफ कर दे, अल्लाह आज पूरे शहर के सामने जलील होने से बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूं अब गुनाह नहीं करूंगा, अब खता नहीं करूंगा, मेरे मौला आज माफ कर दे, जलील हो जाऊंगा। वो तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है ना। हमारी माँ कब चाहती थी हम जलील हो? वो तो रहमान है, रहीम है, सत्तार है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह बंदा तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तूने कहा तेरा नाफरमान मौजूद है, तूने कहा तेरा खताकार मौजूद है, जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी। अल्लाह खड़ा होके कोई नहीं गया, बारिश कैसे शुरू हो गई? ऐ मूसा उस बंदे ने अब मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने मुझसे माफी मांग ली है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अब तो मिला दे, तेरा महबूब कौन है, तेरा प्यारा बंदा कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली?
सुनो कैसा करीम मौला है मेरा रहमान। रब फरमाता है मूसा जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ऐसा है मेरा मालिक। पंजाबी शायर कहते ना, हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को हमारी कोई बड़ी गलती मिल जाए घर से निकाल देते हैं, डांटते मारते। हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। लख गुना मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे, वो फिर भी पर्दे डाल रहा है। मगर ये कैसा बंदा है कि उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दिन आ गए, अब वक्त आ गया है करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता मुब्तला यार किसके दर पर मैं काम तो तौबा ही करना है ना, हमारा काम तो इरादा ही करना है। मदद तो मालिक ने करनी है, अब उससे यही कहना है, या अल्लाह जो मेरे बस में मैंने कर लिया, मैं नियत भी कर रहा हूँ, अल्लाह मदद तूने करनी है, ताकत तूने देनी है, इस्तिकामत भी तूने देनी है। बड़ा करीब है मेरा मौला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इतने सारे लोग हैं, इनमें कितने नेक होंगे अल्लाह के बंदे। अल्लाह इनके सदके हमारी इस नियत को कबूल फरमा ले, हमारी इस तौबा को कबूल फरमा ले और हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले। आप तौबा करें, अल्लाह करीम रास्ता खोल देगा, फिर नेकियां करना आसान होंगी, फिर इंसान करीब होता चला जाएगा अल्लाह की रहमत से। लेकिन पहला कदम तौबा है, और तौबा करने वाले मोमिन की मिसाल क्या है? सुनो, एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील परिंदा वहां आया और आपके सामने जमीन पर लौटपोट होने लगा। उसने अपने आप को जमीन पर इतना रगड़ा कि उसकी खाली उतर गई। अब वो सुर्ख, गंजा और इंतहाई बदसूरत नजर आने लगा। इसके बाद वो बहते पानी में गया, उसके बाद वो कीचड़ में गया, तो कीचड़ में लौटपोट हुआ तो और बदसूरत हो गया। पहले बाल उतर गए, अब जिस्म भी गंदा हो गया। उसके बाद वो बहते पानी में गया, वहां नहाया तो पहले जैसा हुस्न लौट आया, जिस्म से कीचड़ भी उतर गया, खाल भी नहीं आ गई, पहले जैसा हो गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया अपने हवारियों से कि ये परिंदा तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर भेजा गया है, कि मोमिन की मिसाल है। मोमिन बंदा जब गुनाह करता है ना, अपने आप को बदसूरत और गंदा कर लेता है, फिर जब वो तौबा करता है तो गुनाहों की सियाही उससे दूर हो जाती है और वो पहले जैसा हसीन और जमील हो जाता है। हाय हाय हाय, जरा गौर करें प्यारे इस्लाम, हमने क्या किया अपने साथ? कभी तसव्वुर तो करना, मैं दुनिया में किस लिए आया था, मेरे दिन रात किन कामों में गुजर रहे हैं। मेरी आंखें तो अल्लाह ने कुरान देखने को दी थी, कुरान पढ़ने को दी थी, इन आंखों से मैं क्या देख रहा हूं? मुझे जबान जिक्रुल्लाह करने के लिए दी थी, मैं इससे क्या बोल रहा हूं? मेरे कान तिलावत और नात और नेक बातें सुनने के लिए थे, मैं सुन क्या रहा हूं? दिन आने वाला है जब मलकुल मौत आएंगे, मेरे जिस्म से मेरी रूह को खींच लिया जाएगा, मुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा, तो फिर मैं क्या कर सकूंगा? फिर तो कोई जवाब नहीं होगा ना। आपको पता है बंदे के पास अल्लाह करीम के दो राज हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदे के पास अल्लाह पाक के दो राज होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदे की तरफ इल्हाम फरमाता है। नंबर एक, जब अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है ना, अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पाक और साफ सुथरा निकाल दिया है और जिंदगी देकर तुझे इस पर अमीन बना दिया। अब मैं देखूंगा कि तू अमानत की जिम्मेदारी कैसे निभाता है। और जब उसकी रूह निकलती है ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी अमानत के साथ क्या सलूक किया? अगर तूने उसकी हिफाजत की, वादे पर कायम रहा और इस वादे को कायम करके मुझसे मुलाकात करेगा, तो मैं भी अपना कॉल पूरा करूंगा, और अगर तूने इसे जाया कर दिया तो मैं भी पकड़ फरमाऊंगा।
ये जान जो है ना, ये सांसें, ये अमानत है, ये हमारी नहीं है, ये अल्लाह ने दी है ना। मैं मिसाल देता हूं आपको, कोई बंदा बड़ी कीमती चीज रखवाए, कोई हीरा रखवा दे, कोई कीमती 15-20 लाख 25 लाख 50 लाख की चीज रखवाए, जरा संभालो, और आपसे वो खो जाए, डबल टेंशन, इतनी कीमती चीज मैंने खो दी, और अब जिसने अमानत रखवाई थी वो मेरा क्या हाल करेगा। ऐसा ही है ना, ये सांसें अल्लाह ने दी हैं, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दी है, उसे राजी करने के लिए दी है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी सांसें गुनाहों में, हमारे दिन गुनाहों में, रातें गुनाहों में गुजर रही हैं। एक तो इन दिनों को जाया कर रहे हो, जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? खुदारा इस जिंदगी की इन अनमोल हीरो की कदर कीजिए, गुनाह मत कीजिए, गुनाहों की आदतों को छोड़ दीजिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ऐसे नबी पाक के फरामीन है कि सुने तो बंदे को ख्याल आता है कि यार ऐसा करीम मौला है तो फिर मैं क्यों ना तौबा कर लूं। आका फरमाते कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, यानी हर आदमी से खता हो जाती है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। हो गई ना गलती, मान ले, ऐ अल्लाह माफ कर दे, हो गई गलती, बंदा हूं ना तेरा, कमजोर हूं, अल्लाह हो गए गुनाह, मैं फंस गया मालिक, मगर अब तौबा करता हूं, ऐ करीम तो मुझे माफ कर दे। वो बड़ा प्यारा, वो बड़ा करम करने वाला मौला है, मगर हम तौबा तो करें ना। याद रखिए हम मासूम नहीं है। मासूम कौन है? फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, हम तो इंसान है ना, हम जैसे आम इंसानों से खताएं हो ही जाती हैं। हमें तौबा की तरफ बढ़ना चाहिए। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं मखलूक 3 तरह की है। नंबर 1 फरिश्ते, ये मासूम है, ये गुनाह करते ही नहीं। नंबर 2 शयातीन, ये गुनाह करते हैं, गुनाह छोड़ते ही नहीं। तीसरे नंबर पर फरमाया इंसान, ये खता भी होती है इनसे और तौबा करके नेकियों की तरफ भी बढ़ता है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे गुनाह ना हो, हमसे खताएं ना हो। अब 2 ही सूरतें बचती हैं, गुनाह पर अड़ जाए तो ये शैतान का वस्फ है, और गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे, ये इंसान की अलामत है। गुनाह हो गया ना, आज आ गए हैं जुमेरात को इज्तिमा में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, करीम के दर पर बैठे हैं, शाबान का महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है, बस अब तौबा करनी है, अब रब को राजी करना है, अब गुनाह नहीं करना है। ये हमने अपना समझ लो आज टारगेट बनाना है। और सुनो, जब बंदा वाकई सच्चे दिल से तौबा करे ना, तो वो कैसा करीम है। दुनिया में पता ही क्या होता है, हम किसी का जुर्म कर लें, किसी की खता कर लें, किसी को नाराज कर दें और अब उससे माफी मांगे, तो कहता है चलो जाओ मैंने माफ कर दिया, आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे, और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इस्राएली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह मुआफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया। गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, वरना मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ के हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले,
फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। अगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है माथे पे बल नहीं है, दोपहर को ज़ोहर कज़ा हो गई टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया कोई शर्म नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे। खता हो गई या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा मौला माफ कर दे। खुदा की कसम ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूँ, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूँ, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसकी मगफिरत कर दी। हाय हाय कौन है ऐसा करीब। हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, दो बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, तीन चार बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है। इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता ना, आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है, वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है, एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा ये नहीं है। यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, वो आपको वाकया याद होना चाहिए। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था, आपने एक शख्स को देखा उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें, शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल आपकी हैबत, और उसको पता था कि अब ये शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया है। हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है, हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा, सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी, जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया, उसने दिल दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, आज जलील होने से बचा ले, अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी। डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है, हजरत उमर के हाथ में वो बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है। रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक, वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया, वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना, तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं।
अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है, मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक। फरमाया मूसा तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। आप खड़े हो गए, आपने कहा इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, वो निकल जाए हमारे मजमे से कि तू वो शख्स है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो पहचान तो गया कि बात तो मेरी हो रही है। उसने राइट देखा, बाएं देखा कि शायद कोई और उठ जाए, कोई नहीं उठा। वो समझ गया कि मैं ही वो खताकार हूं। लेकिन वो सोचने लगा कि आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस बंदे ने पता ही क्या काम किया, उसने दिल ही दिल में अब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज माफ कर दे, अल्लाह आज पूरे शहर के सामने जलील होने से बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूं अब गुनाह नहीं करूंगा, अब खता नहीं करूंगा, मेरे मौला आज माफ कर दे, जलील हो जाऊंगा। वो तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है ना। हमारी माँ कब चाहती थी हम जलील हो, वो तो रहमान है, रहीम है, सत्तार है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह बंदा तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तूने कहा तेरा नाफरमान मौजूद है, तूने कहा तेरा खताकार मौजूद है, जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी। अल्लाह खड़ा होके कोई नहीं गया, बारिश कैसे शुरू हो गई? ऐ मूसा उस बंदे ने अब मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने मुझसे माफी मांग ली है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अब तो मिला दे, तेरा महबूब कौन है, तेरा प्यारा बंदा कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली। सुनो कैसा करीम मौला है मेरा रहमान रब। फरमाता है मूसा जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ऐसा है मेरा मालिक। पंजाबी शायर कहते ना, हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को हमारी कोई बड़ी गलती मिल जाए घर से निकाल देते हैं, डांटते मारते। हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुना मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, मगर ये कैसा बंदा है कि उससे दोस्ती नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दिन आ गए हैं, अब वक्त आ गया है करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता मुब्तला यार किसके दर पर मैं काम तो तौबा ही करना है ना, हमारा काम तो इरादा ही करना है, मदद तो मालिक ने करनी है। उससे यही कहना है या अल्लाह जो मेरे बस में मैंने कर लिया, मैं नियत भी कर रहा हूँ, अल्लाह मदद तूने करनी है, ताकत तूने देनी है, इस्तिकामत भी तूने देनी है। बड़ा करीब है मेरा मौला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इतने सारे लोग हैं, इनमें कितने नेक होंगे अल्लाह के बंदे। अल्लाह इनके सदके हमारी इस नियत को कबूल फरमा ले, हमारी इस तौबा को कबूल फरमा ले और हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले। आप तौबा करें, अल्लाह करीम रास्ता खोल देगा, फिर नेकियां करना आसान होंगी, फिर इंसान करीब होता चला जाएगा अल्लाह की रहमत से। लेकिन पहला कदम तौबा है, और तौबा करने वाले मोमिन की मिसाल क्या है? सुनो, एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا, اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا, تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے, اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا, وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا, جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا, کھال بھی نہیں آ گئی, پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا, اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ذرا غور کریں پیارے اسلام, ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. کبھی تصور تو کرنا, میں دنیا میں کس لیے آیا تھا, میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں. میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی, قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں. مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی, میں اس سے کیا بول رہا ہوں. میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے, میں سن کیا رہا ہوں. دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے, میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا, مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پھر میں کیا کر سکوں گا, پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر ایک, جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا, اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے, میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے, تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر تو نے اس کی حفاظت کی, وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا, اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا, یہ سانسیں, یہ امانت ہے, یہ ہماری نہیں ہے, یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے, کوئی ہیرا رکھوا دے, کوئی قیمتی 15-20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے, کہ سنبھالو, اور آپ سے وہ کھو جائے, ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی, اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا. ایسا ہی ہے نا, یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں, یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے, اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری سانسیں گناہوں میں, ہمارے دن گناہوں میں, راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں, اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے. خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیرو کی قدر کیجئے, گناہ مت کیجئے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی, مان لے, اے اللہ معاف کر دے, ہو گئی غلطی, بندہ ہوں نا تیرا, کمزور ہوں, اے اللہ ہو گئے گناہ, میں پھنس گیا مالک, مگر اب توبہ کرتا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا, وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے, مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں, انبیاء ہیں, ہم تو انسان ہیں نا. ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے. نمبر 1 فرشتے, یہ معصوم ہیں, یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر 2 شیاطین, یہ گناہ کرتے ہیں, گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان, یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں, گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے, اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, یہ انسان کی علامت ہے. گناہ ہو گیا نا, آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کریم کے در پر بیٹھے ہیں, شعبان کا مہینہ جاری ہے, برکتوں والا مہینہ جاری ہے, بس اب توبہ کرنی ہے, اب رب کو راضی کرنا ہے, اب گناہ نہیں کرنا ہے. یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے. اور سنو, جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے. دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا جرم کر لیں, کسی کی خطا کر لیں, کسی کو ناراض کر دیں, اور اب اس سے معافی مانگے, وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا.
ये आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे, और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इसराइली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह मुआफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया। गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, वरना मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ के हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। मगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को जोहर कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, खता हो गई या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। खुदा की कसम, ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूं, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूं, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब। हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, दो बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, तीन चार बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है। इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता ना, आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है, वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं, तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है, एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा ये नहीं है। यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब
अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, वो आपको वाकया याद होना चाहिए। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था। आपने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें? शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल, आपकी हैबत, और उसको पता था कि अब ये शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया। हैं? हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है? कहा हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा? सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी, जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया? उसने दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, आज जलील होने से बचा ले, या अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी? डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है। हजरत उमर के हाथ में वो बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है। रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक, वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम